A very good morning to all of you, respected senior, my dear colleagues and researcher scholar. I am taking a privilege to welcome you all in our special guest lecture by the Dr. Suneet Walia from Harisingar Central University, Sagar, MP. Dr. Suneet Walia is affiliated as Assistant Professor in the Department of Management at Harisingar University since 2013. She has cleared UGC NET examination in the year 2011, as well as she has more than 60 years of corporate as well as teaching experience. She received her PhD degree from Human Resources from Swami Vivekananda University, Sagar in the year 2018. She has done MBA from University Institute of Management, Jabalpur, and she has published research paper as well as conference and research paper more than 18, as she has published 2 book chapters and attended more than 7 trainings. She has attended many research refresher professional courses. So, I am welcome you all in the special lecture in the series of research methodology, and request to our research scholar, you can put your queries at the end of the session. I invite you, Dr. Suneet Walia, please start your session. Thank you, Dr. Namrata. So, good morning to all. And Namrata is a good friend of mine and a classmate of mine during MBA time. She gave me this topic, publication and research ethics and plagiarism. So, which is a very, very, I think, most common and most prominent topic of the present times when we are all into researches. So, I'll be dealing with this topic today. ये समझें कि what exactly ethics is telling us to do. Ethics is basically defining your action. So it basically distinguishes between the acceptable and unacceptable behavior. So something that tells you what you're doing is right and what you're doing is wrong. And generally, if we talk about ethics in our personal lives, ethics are no written rules. But जब हम publication ethics की बात करते हैं, there are written codes and there are set norms which, as a researcher, we need to follow and adhere to. So these guidelines of the principles may vary, across countries, disciplines, institutions, even laboratories. But generally, I'll tell you, जो publication ethics हैं, they are all on the same norms and having a generic concept which tells you to do the right thing. So when we talk about ethics, it not only dictates the conduct and functioning of an organization, but also of the business entity. तो ऐसा नहीं है ethics सिर्फ एक aspect of life में है, सारे aspects of life में है, be it a corporate organization, be it a government organization. हर जगह ethics की एक requirement है, ethical working की requirement है, ethical actions की requirement है, and it is always prescribed that you are basically need to work ethically in whatever you do. So now the important question comes, what is the ethical conduct in of research? Because I believe you're all PhD students, you're all in your coursework. So abhi that is the step 1 of your research. अभी आप कोर्स वर्क कर रहे हैं, कोर्स वर्क के बाद आपके गाइड अलॉट होंगे और उसके हिसाब से आपकी थीसिस के लिए आप अपना वर्क करेंगे. तो जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च एज द वर्ड सजेस्ट, रिसर्च, सो समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और उसमें आप एक नया कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो दैट विल बी योर रिसर्च.
तो उस रिसर्च को करने के लिए क्या नॉर्म्स रखने चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या एथिकल फंक्शनिंग होनी चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन. सो जब हम पब्लिकेशन एथिक्स की बात करते हैं, अगेन आई वुड से दीज आर द रूल्स बेसिकली टू कंडक्ट एंड विच आर अग्रीड अपॉन साइंटिफिकली. इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये रूल्स एंड कोड्स बनाए हुए हैं for doing research work or a scientific research or any scholarly work. So you need to keep these rules in mind when you are writing your thesis or a research paper. So generally, why these are written is basically these are the standards that protects the intellectual property and it forbids the republication of another's work without proper credit. So this term intellectual property is very important. आप लोगों ने ये वर्ड सुना ही होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. आई होप सो. यू कैन रिस्पॉन्ड इफ यू वांट टू. द स्टूडेंट्स कैन रिस्पॉन्ड इन बिटवीन. कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. This is a So if request to intellectual Dr. property Sunil. वर्ड सुना ही होगा. Yes, Yes, ma'am. please, please include your speech in Hindi also. हाँ, आई विल. Please. तो वही मैं पूछ रही थी आप लोगों से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा? किसी ने सुना है अभी तक? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. किसी को आइडिया है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं? मैडम कोई भी प्रोडक्ट जो अपन ने यूनिक बनाया कोई उसको कॉपी ना करे. जैसे कोई म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अपना रजिस्ट्रेशन करती है. कॉपीराइट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, 2-3 चीजें रहती है. तो वो something you have written, something that you rework, कुछ creative work है, original है, तो उसके intellectual property rights बनते हैं और there are acts and legislations regarding to that. Similarly, उसी तरह से आप जो रिसर्च वर्क करते हैं, आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, वो आपका ओरिजिनल क्रिएशन होता है. उस ओरिजिनल क्रिएशन से उस ओरिजिनल क्रिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पब्लिकेशन एथिक्स हैं, ये रूल्स बनाए गए हैं ताकि आपकी जो रिसर्च वर्क है, जो एक तरह से हम बोलेंगे कॉमन भी होती है और एक तरह से हम बोलेंगे यूनिक भी होती है. ओके, तो इस वर्क प्रोटेक्ट करने के लिए इस रूल्स बनाए गए हैं फॉर योर रिसर्च वर्क. सो जनरली इट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, आपका कोई काम है, आपने किया हुआ है पहले, उसको कोई और कॉपी ना करे या उसको कोई और अपना बना के ना छपवा दे, तो उस के लिए आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, जिससे हम पब्लिकेशन एथिक्स कहते हैं. और ये एथिक्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाई हुई हैं, ये रूल्स से पूरा प्रोटेक्शन देंगे. तो ये पब्लिकेशन एथिक्स बेसिकली क्या है जो आपको ध्यान में रखना है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है या आपकी थीसिस लिखना है. वो एथिकल नॉर्म्स क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूव का. अप्रूव क्या होता है? जब आप किसी का पेपर पढ़ते हैं या किसी का वर्क स्टडी करते हैं और उस वर्क को आप अपनी रिसर्च से कोरिलेट करते हैं, तो उस हिसाब से आप उस वर्क को अपने रिसर्च में मेंशन करते हैं. तो आप जब वो उनका वर्क अपनी रिसर्च में मेंशन करते हैं, तो आपको उनका नाम ही मेंशन करना होता है कि जिसने वो काम ओरिजिनली किया है. अगर आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप एक प्रैक्टिस करते हैं. Okay, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
ओके, तो सबसे पहले होता है साइटेशंस का, जिसे हम साइटेशंस और रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसमें कि हम किसी और का काम हम जब कॉपी करते हैं या हम कोरिलेट करते हैं, हम अपने काम में मेंशन करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट देते हैं कि ये काम उस व्यक्ति ने ऑलरेडी कर चुका है या किया हुआ है, और हमने अपना जो वर्क है उससे इंस्पायर करके हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं. So that is where you need to give that appropriate credit to that concerned or respective person, right? So that is why you need to give this proper citation paper के बीच में भी, और at the end of the paper you need to put in the reference as well. Okay. Second is authorship status. Second ethical norms जो आपको cater करना है वो ethical status है, authorship status है. Authorship status क्या होता है कि जैसे कि आप हैं, आपके साथ आपके कोई फ्रेंड है, कलीग हैं, आप लोग मिल के काम कर रहे हैं. तो जब आप मिल के काम करते हैं, हो सकता है कुछ परसेंटेज काम किसी और ने किया हो, कुछ परसेंटेज काम किसी और ने किया हो, तो उसका मेंशन होना ज़रूरी है. फर्स्ट ऑथर, सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर, फोर्थ ऑथर, जो भी है आपके बीच में जो भी डिस्कशन होता है कि हम फर्स्ट ऑथर किसका नाम रखेंगे, सेकेंड ऑथर किसका रखेंगे, दैट इज़ योर पर्सनल थिंग. बट अगर एक से ज़्यादा लोग एक पेपर पे या रिसर्च वर्क पे काम कर रहे हैं, तो सबके नाम वहाँ पे मेंशन होने चाहिए. सो दैट इज़ ऑथरशिप स्टेटस, that you need to mention every author's name in your paper or your research work. The third ethical norms that you need to keep in mind is appropriate citation. अब citations करना, आई एम श्योर अभी आप लोग कोर्स वर्क में आप लोग के टीचर्स ने आपको बताया होगा. citations करने का तरीका होता है, जब हम किसी और का पेपर या वर्क पढ़ते हैं तो उसका नाम भी मेंशन करते हैं, जिस पेपर से हम लेते हैं उसका नाम भी हम मेंशन करते हैं, तो इसे कहते हैं अप्रोप्रिएट साइटेशन. मीन्स सपोज आपने XYZ पेपर लिया, XYZ पेपर में ABC ऑथर ने कुछ और मेंशन किया है, तो आपको ABC ऑथर भी मेंशन करना है, XYZ भी मेंशन करना है. दिस इज़ व्हाट अप्रोप्रिएट साइटेशन इज़ ऑल अबाउट. क्योंकि सपोज XYZ पेपर ने ABC के पेपर से कुछ वर्क कॉपी किया है या कॉपी लिया है, इंस्पायर हुआ है, उसने ABC का मेंशन किया है. सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि जैसे कि हमने एक पेपर पढ़ा, अगर मैं बात करूं एटीट्यूड पे मैंने एक पेपर पढ़ा, तो उस पेपर में मेंशन हुआ है कि किसी और ने कहा कि बैड एटीट्यूड इज़ ऑल्सो गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. अब ये बैड एटीट्यूड का अगर आप मेंशन कर रहे हो तो वो किसी थर्ड ऑथर ने मेंशन किया है, तो उस थर्ड ऑथर का नाम भी आपको आपके पेपर में डालना होगा. दिस इज़ हाउ अप्रोप्रिएट साइटेशन गोज़. तो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. ऐसा नहीं कि आपने जिस पेपर से उठाया सिर्फ उस पेपर का नाम डालेंगे. उस पेपर में जिस ऑथर का नाम मेंशन है, जिस वर्क का नाम मेंशन है, यू नीड टू इवन पुट दैट पर्सन्स नेम इन योर वर्क. Last but not the least that you need to things keep in mind is no simultaneous submission. हम क्या करते हैं, कभी कभी कई लोग क्या करते हैं कि आप अपना एक पेपर लिख लेते हैं, आप एक जर्नल लेते हैं, आप उसमें सबमिट कर देते हैं, और पैरेलली आप दूसरा जर्नल लेते हैं, उसमें भी सबमिट कर देते हैं. फिर आपके मन में आता है कि चलो देखते हैं कि कौन सा जर्नल एक्सेप्ट करेगा, तो जो जर्नल एक्सेप्ट करेगा हम उसमें अपना पेपर छपवा देंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. आपको एक बार में एक ही जर्नल में सबमिट करना होता है, और उसी जर्नल में जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक आप सेकेंड पेपर का या सेकेंड जर्नल का कॉल नहीं ले सकते हैं. सो यू नीड टू ओनली सबमिट योर पेपर और योर वर्क इन वन रिस्पेक्टिव जर्नल, जब तक कि आपको उस जर्नल का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन नहीं मिल जाता. वंस इट इज़ एक्सेप्टेड इट्स फाइन. If it gets rejected, then you have an option to go and search for another journal. Okay, so this is what you need to keep in mind. These are the basic ethical norms for any publication, for any subjects that you need to keep in mind and follow while going for research papers or even your thesis publication. आपको ये बेसिक है, और भी बहुत सारे इसमें रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, पर ये बेसिक नॉर्म्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है. एनी ऑफ द नॉर्म्स इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग, आपका रिसर्च मिसकंडक्ट पे आपको पेनलाइज किया जा सकता है.
So these are basically your basic ethical norms that you need to follow while doing your ethics. जस्ट क्योंकि हम रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आई वुड लाइक टू गिव यू अ हिस्ट्री कि ये कहाँ से आया, क्यों हम एथिक्स पे इतना फोकस कर रहे हैं और क्यों एथिक्स होने चाहिए इन पब्लिकेशन। ओके, सो बेसिकली ये जो पब्लिकेशन होता है, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, ये एक व्यक्ति के दिमाग का जो है, उसकी हम कहते हैं कि उसका जो इंटेलेक्ट है, उसका एक आउटपुट होता है, you know. So this work is one of the scientists builds upon that of others. तो जब हम ये काम भी करते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि जब हम वर्ड रिसर्च यूज़ करते हैं, हम किसी और का वर्क से इंस्पायर होके हम अपना न्यू एंगल देते हैं। तो इस तरह से ये पब्लिकेशंस कंटिन्यूसली पब्लिश होते रहते हैं। फिर जो एथिकल का जो प्रॉब्लम आया था, एथिक्स नॉर्म्स के लिए क्वेश्चंस आया था, एक डॉक्टर हैवल्सन है ब्रिटेन के, इन्होंने देखा कि इनका कोई एक पेपर पब्लिश हुआ था और उसमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी आई थी किसी और के पेपर में। तब ये क्वेश्चन उठा कि किसी ने किसी का पेपर कॉपी कर लिया। इस्टेब्लिश की थी और जर्नल फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ रॉयल सोसाइटी ये बनाई थी। इस जर्नल का जो क्रिएशन ही था वो इसलिए था कि ये ओरिजिनल जो कंट्रीब्यूशन है इन एनी साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक तरह से एक इंसान को अपनी बात कहने का वो मौका दें, यू नो, टू एनकरेज What is the need to publish? हम क्यों पब्लिश करते हैं? आपको क्यों पब्लिश करना है? ओके, यू डूइंग योर रिसर्च, आपको लगता होगा कि अरे हम थीसिस ही लिख लें वही सफिशिएंट है, हमें और रिसर्च वर्क क्यों करना है? So we need to publish papers because बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट, इट वैलिडेट्स योर रिसर्च। आप जब अपना कोई एंगल देते हैं, सपोजिडली आप वर्क कर रहे हैं किसी नई मेडिसिन को बनाने के लिए, या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कोई टीचिंग नॉर्म्स का नया सिस्टम प्रोसेस बनाने के लिए, लेकिन वो टीचिंग नॉर्म्स और प्रोसेस को आप जो एग्जिस्टिंग नॉर्म से कंपेयर करके मॉडिफाई ही करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ अ रिसर्च। ओके, तो जब आप अपनी रिसर्च बनाएंगे और अपनी बात कहेंगे, तो आपके वर्क को एक ऑथेंटिसिटी मिलती है कि आप ये काम अच्छा कर रहे हैं, आपने ये काम लोगों से पहले कर लिया है। तो इसका ये वैलिडेशन आपको आपके काम के लिए मिलता है, आपके थॉट प्रोसेस के लिए आपको मिल जाता है। Half an hour. Second, obviously, when you get this recognition, when you get this validation, it gives you confidence. Confidence कैसा? That it is basically giving you a confidence that you are thinking and working on the right track. आप सही जगह पे सही दिमाग लगा रहे हैं, सही थॉट प्रोसेस से काम कर रहे हैं और सही काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आपके आसपास के लोगों को आपको पता चलता है, तो वो भी they recognize you. Thirdly, when you go for research working, it gives you national and international recognition, because जो टाइप ऑफ जर्नल में आप पब्लिश करते हैं, तो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू यू और योर ओन सोसाइटी। ये स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो भी जर्नल यूज़ करते हैं, देयर आर रीडर्स हु आर ऑलरेडी डूइंग वर्क। तो ये आपको एक नेशनल और इंटरनेशनल रिकग्निशन प्रोवाइड करता है ऑफ योर वर्क। तो ऑब्वियसली नेशनल इंटरनेशनल रिकग्निशन जब आपको मिलती है, आपका ऑब्वियसली मोरल भी बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, एंड इट गिव्स यू the zeal to work more and zeal to work harder. And last but not the least, मोस्टली academicians ये काम करते हैं क्योंकि उनको academic promotions के लिए भी ये researches required होती है. So that is why it is required for any research scholar
to go for such publications, keeping the ethical norms in mind. तो जनरल प्रोसेस है ये आपके पब्लिकेशन का। जब आप पब्लिकेशन में जाते हैं तो आपको आप क्वालिटेटिव देखो 2 टाइप की रिसर्च होती है, एक क्वालिटेटिव होती है, एक एम्पिरिकल होती है। बोथ आर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड, बोथ आर गुड। कई लोग प्रेफर करते हैं एम्पिरिकल पब्लिकेशन में, जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें एरर्स निकालते हैं, एंड देन आप अपना जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस ऑब्जेक्टिव से आप रिसर्च करते हैं, आप उसे ले डाउन करते हैं, और फिर वो निकल के आता है या नहीं निकल के आता है, वो आपका कंक्लूजन या इन्फरेंस बनता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप थियोरीज एंड प्रोसेसेस डेवलप करते हैं, तो जो भी आप करते हैं उसे आप एक रिसर्च आर्टिकल में ट्रांसफर करते हैं इन योर राइटिंग वर्क। सो यू ट्रांसफॉर्म योर रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू अ रिसर्च आर्टिकल। देन सेकंड इज यू नीड टू गिव अ रीसेंट रेफरेंस स्टाइल। जो भी आप जर्नल में आप देना चाह रहे हैं, हर जर्नल की एक रेफरेंसिंग स्टाइल होती है। नॉर्मल रेफरेंसिंग स्टाइल फॉर सोशल साइंस रिसर्च इज APA, और उस हिसाब से आपको रेफरेंसिंग करनी पड़ती है, साइटेशंस देने पड़ते हैं, एंड देन यू चूज योर जर्नल कि जिस जर्नल में आपको सबमिट करना है। सो ये एक सिंपल सा एक रिसर्च पब्लिकेशन प्रोसेस है जो एवरीवन हैज टू फॉलो इन एवरी फैकल्टी। तो अब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज पब्लिशेबल, हम क्या पब्लिश कर सकते हैं? तो द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट योर स्क्रिप्ट हैज टू बी ओरिजिनल। आप ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही पब्लिश कर सकते हैं, मीन्स योर वर्क हैज टू बी ओरिजिनल। आप किसी का कॉपी पेस्ट या किसी का ऑलरेडी किया हुआ रिसर्च को अपने हिसाब से डाल के नहीं कर सकते। आपका जो भी रिसर्च एंगल होगा, जो भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, वो आपका ओरिजिनल। आपकी जो भी स्क्रिप्टिंग होगी वो आपकी ओरिजिनल राइटिंग होगी, वही चीज़ आप पब्लिश कर सकते हैं। Secondly, what you need to be careful is you need to have it methodologically structured. हर रिसर्च पेपर का, सोशल साइंस रिसर्च का एक स्ट्रक्चर होता है। हम एम्पिरिकल में देखते हैं, तो एम्पिरिकल में आप शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, देन यू डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव, आप हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, फिर आप उसको डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्वेश्चनर वगैरह बनाते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, देन यू साइट वॉट एवर योर कंक्लूजन इज। और क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी आप मॉडल बनाते हैं, जो भी आप थ्योरी डेवलप करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं और एक एंगल एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये थ्योरी आपकी वर्क करेगी। So this is methodologically structured. You need to have a research paper which is methodologically structured. Third, significant findings. कोई भी रिसर्च हो, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी और के पेपर से इंस्पायर होकर आपने काम किया और उसी की रिसर्च फाइंडिंग्स आपने अपने उसमें डाल दी। आपकी अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स, आपकी जो भी डेटा कलेक्शन है, उसमें आपने क्या फाइंडिंग्स किए हैं, आपका जो भी यूनिवर्स है जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा ने कैसा आपको रिस्पॉन्स दिया है, उसमें क्या एरर्स आए हैं, आपको क्या डिफ़िकल्टीज हुई हैं, वो सारी फाइंडिंग्स आपको क्लैरिटी से मेंशन करना पड़ेगा। आप यूं ही वेगली या एम्बिगुअसली लिख नहीं सकते कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक टर्म है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो टर्म होता है वो इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे। आप अगर सपोज मेरे किसी रिसर्च में मैं ये ढूंढ रही हूँ क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से इम्प्रूव करने से या एक कोऑपरेटिव कल्चर डालने से क्या मेरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, ओके, तो मैंने ये डेटा उस वे से बनाया, उस वे से कलेक्ट किया। लेकिन रिसर्च फाइंडिंग में मैं ये नहीं लिख सकती कि इट माइट इम्प्रूव with a cooperative culture my employee performance might improve। आप इस तरह से नहीं लिख सकते। What is the percentage of effect that organizational culture is having on the productivity of my employees? मुझे ये डेटा आप significant findings में देना पड़ेगा। क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट कर रहा है मेरी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को? कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, किस परसेंटेज से कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका पूरा मुझे जो फिगर है, जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, जो भी आप टेस्ट लगाते हैं,
ओके उस टेस्ट में आपके निकल के आता है कि सिग्निफिकेंटली वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है मेरे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को या नहीं कर रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करके क्लैरिटी से लिखना पड़ेगा। आप रैंडमली ये नहीं लिख सकते कि इट हैज सम इफेक्ट। Some effect will not give you a good findings, but then your research will not consider to be a good research. Why? Because you have done a vague research. इसलिए सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को आपको एक प्रॉपर तरीके से फिगर्स के साथ डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज पब्लिशेबल। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नो प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म सबसे कॉमन ऑफेंस है आजकल और उसकी पनिशमेंट भी बहुत सिवियर हो चुकी है। आपको देखना है कि आपका जो भी रिसर्च वर्क है उसमें प्लेजरिज्म की परसेंटेज बहुत मिनिमम है। एज पर द प्रेजेंट यूजीसी नॉर्म्स आपका जो प्लेजरिज्म जो कंटेंट है दैट शुड बी लेस देन 10%। पहले था अराउंड 25% एक्सेप्टेबल था, पर यूजीसी हैज गॉन वेरी स्ट्रिक्ट। ओके नाउ आपकी चाहे थीसिस हो चाहे आपका रिसर्च पेपर हो, प्लेजरिज्म कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 10%। एक्चुअली इट हैज टू बी लेस देन 10%। So we'll discuss what plagiarism is all about now. So I hope यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैडम हाँ गुड जी, मॉर्निंग मैम। morning. एक क्वेरी था, आपने बोला कि ऑथोरिटेरियन साइटेशन यू कुछ ऐसा टर्म आपने यूज किया था जिसमें आपने बोला कि ऑल द ऑथरशिप स्टेटस ऑथरशिप स्टेटस while citing their work we have to name all the authors. yes तो Authorship पहले हम status लोग हाँ बोलिए पहले हम लोग एटल लिख देते थे ETAL, करेक्ट है ना? तो अभी क्या अभी सबका नाम सेपरेटली मेंशन करना है while citing them inside the paper and रेफरेंस में भी पूरा लिखना है? वो मुझे थोड़ा डाउट था। नहीं साइटेशन आप बात कर रहे हो साइटेशन की, मैं ऑथरशिप स्टेटस की बात कर रही हूँ। ऑथरशिप स्टेटस मींस यू आर राइटिंग अ रिसर्च पेपर, सपोज यू आर राइटिंग विद नम्रता मैम, ओके आपने नम्रता मैम के साथ मिलके अपना पेपर लिखा, पर आपने जब पेपर सबमिशन के लिए दिया तो सिर्फ अपना नाम डाल दिया, नम्रता मैम का नाम नहीं डाला। अच्छा वो बोल रहे हैं। ओके ऑथरशिप स्टेटस मतलब आपके साथ जो लोग काम करेंगे आप सबको क्रेडिट देंगे और उसका नाम भी एज एन ऑथर, चाहे फर्स्ट ऑथर हो चाहे सेकंड ऑथर हो चाहे थर्ड ऑथर हो, आपको नाम डालना चाहिए। दैट इज एथिकल। अच्छा it is just for our work you were speaking about. yes authorship status is authorship status। citation की बात नहीं कर रही। साइटेशन में तो सबका नाम डालना जरूरी नहीं है ना मैडम? सपोज 2-3 है तो एटल लिख सकते हो। रेफरेंस में सबका नाम आएगा। जब आप पेपर के बीच में साइट करते हैं तो जैसे सपोज इट्स अगर मैं एग्जांपल दूं, 3 ऑथर्स हैं किसी पेपर के, सो वन इज शर्मा, वन इज वर्मा एंड वन इज तिवारी। सो फर्स्ट जो हम साइट करते हैं दैट इज शर्मा, वर्मा एंड तिवारी विद द ईयर करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम जब आप उन्हें साइट करेंगे तो शर्मा एट ऑल कर देंगे। ओके फाइन क्लियर? फाइन मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस? बेसिक बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी में जब आप कहीं से डेफिनेशन उठाते हैं तो डेफिनेशन कौन से पेज नंबर से उठाइए, कौन से पैराग्राफ से उठाइए, तो जिस पेज में आप उसको मेंशन करें उसी के नीचे आप उसका पूरा ब्यौरा दे सकते हैं कि इस टेक्स्ट बुक से इस पेज नंबर के इस पैराग्राफ से मैंने ये डेफिनेशन उठाई। तो elaborative details is bibliography. Okay. And referencing is the author's name, the textbook's name, the publisher's name. Ma'am, and what are the types of references style? टाइप्स ऑफ रेफरेंस स्टाइल तो बेटा नॉर्मली जो सोशल साइंस में चल रहा है वो APA ही चल रहा है, दैट इज अमेरिकन पब्लिशिंग एकेडमी। बाकी आप जिस जर्नल में पब्लिश करने के लिए सबमिट करेंगे आप उस जर्नल के नॉर्म्स पढ़िए, वो आपको पब्लिशिंग का बता देंगे कौन सा पब्लिशिंग रेफरेंसिंग स्टाइल आपको यूज करना है। नॉर्मली APA चलता है सोशल साइंस। ओके And मैम एक क्वेश्चन, हेलो
मैम हाँ जी बोलिए जी। जैसे मैम हम लोग कोई आर्टिकल या कोई भी पेपर का हम लोग जैसे इंग्लिश में है, उसको हाँ हम लोग जी, हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर वो करते हैं तो क्या वो प्लेजरिज्म में आएगा वो? चलो वो मैं अभी डिस्कस करूंगी प्लेजरिज्म में हम क्या क्या कॉपी कर सकते हैं, क्या क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे कर ओके सकते हैं। ओके ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। एनी एथिकल एथिक्स उससे कुछ आपको अभी डाउट है तो बताइए, नहीं तो आई विल प्रोसीड। ओके, सो नाउ वी कम टू दिस कॉन्सेप्ट। हाँ उसमें मैम हाँ जी बोलिए स्लाइड बोलिए। नंबर 6 में आपने जो 7 में सॉरी स्लाइड नंबर हाँ 7 में आप जो डिस्क्राइब कर रही थी उस टाइम में शायद थोड़ा नेट इशू था तो क्लियर नहीं हो पाया था वो। आपने जो लाइन क्वेश्चन नंबर किया था हम 7 लोगों से में क्रॉस क्वेश्चन जी, वो तो बस वो एक मैम हिस्ट्री थी, नथिंग नथिंग मच मोर। वो सिर्फ एक हिस्ट्री हिस्ट्री के मैंने आपको पहले ऐसी मैम, जनरल जानकारी दी थी। हिस्ट्री के पहले एक जो आपने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि आपने इनके बारे में सुना है, वो असल में क्या बोल रहे थे ना, आपको सुनाई नहीं आ रहा था, क्या वो आप नहीं नहीं, अभी ये वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ एक हिस्ट्री थी कि ये एथिक्स के जो प्रश्न उठा था, मैं तो एक जानकारी के लिए आपको बता रही थी कि पब्लिकेशन एथिक्स क्यों आया क्वेश्चन में, क्यों इसके लिए रूल्स बनाए गए, क्यों नॉर्म्स बनाए गए। तो लंदन में ये एक कोइंसिडेंस हुआ था कि किसी का वर्क सिमिलरली किसी और ने छाप दिया था, तो वो क्वेश्चन आया था कि अरे किसी ने वर्क कॉपी कर दिया है। उसके बाद ये सब सवाल उठे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कर सकते हैं, तब जाके ये सारे पब्लिकेशन नॉर्म्स वहाँ से शुरू हुए। रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने फिर ये नॉर्म्स बनाए कि क्या इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। दैट वाज जस्ट अ बैकग्राउंड, नथिंग मोर। वो आया जो लेसन Okay. Okay. ओके So मैम। now I'll proceed. Now I'll proceed to my next slide. Now we come to understand what is scientific misconduct. हम प्लेजरिज्म की भी बात करते हैं। हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जब आप ये एथिक्स फॉलो नहीं करते हैं। मैंने जो आपको एथिक्स बताए हैं, जब आपके राइटिंग में हम एथिक्स नहीं फॉलो करते हैं, आप किसी का वर्क कॉपी भी कर देते हैं या किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं, तो उसे हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज साइंटिफिक मिसकंडक्ट। तो व्हाट इज दिस साइंटिफिक मिसकंडक्ट? इट इज़ अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कोड्स। जो भी आपको आपके एथिकल बिहेवियर्स आपको दिए गए हैं फॉर पब्लिशिंग, जो आपको रूल्स लिखे गए हैं, द वे यू नीड टू राइट योर आर्टिकल, द वे यू नीड टू गो फॉर पब्लिकेशंस, अगर आप वो नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, प्लेनली हम उसे साइंटिफिक मिसकंडक्ट कहते हैं। सो ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ डेट्रीमेंटल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द होल सिस्टम। आपकी इंटेग्रिटी क्वेश्चन में आ जाती है अगर आप ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, एंड देन बेसिकली ये होता क्या है, जब हम फॉल्सिफिकेशन करते हैं या डेटा फैब्रिकेट करते हैं, उसे हम साइंटिफिक मिसकंडक्ट करते हैं। या कई ऑथर्स क्या करते हैं, जो स्क्यूड डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि जो क्लोज सुपरविजन है, ओके, एक सिंपल टर्म होता है कि क्लोज सुपरविजन बैंकिंग एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। बैंक में ब्रांच मैनेजर को बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्लोज सुपरविजन रखना चाहिए या उनको अपने काम पे छोड़ देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये है, राइट? तो मैंने देखा कि मैं गई बैंक में और मैं चाहती हूँ, मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैंने बैंक के सिस्टम को देखा, मेरे मन में आया कि कई एम्प्लॉयज़ तो काम ही नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांच मैनेजर को उनके सर पे खड़े होना चाहिए और उनकी पल-पल की रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर को मुझे देनी चाहिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते। तो मैंने अपना माइंडसेट ये बना लिया कि हाँ, क्लोज़ सुपरविज़न होना चाहिए बैंकिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अब मैं उस इंटेंशन से मैं गई, मैंने अपना क्वेश्चनर बनाया, मैंने डेटा दिया और डेटा कलेक्ट किया। मेरे डेटा में आया कि क्लोज़ सुपरविज़न की एज़ सच रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, उस डेटा को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे अपने रिसर्च वर्क में ये डालना था कि क्लोज सुपरविजन होना चाहिए। तो ये भी करना एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। आप डेटा को इस तरह से मैनिपुलेट या जनरेट नहीं कर सकते कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आप वहाँ डेटा क्रिएट नहीं कर सकते, या जो चीज़ आपके नज़रिए से नहीं पूरी पड़ रही है, आप उस हिसाब से भी डेटा
नहीं ला सकते। तो these are the things that you need to keep in mind while doing your research, or falsification or fabrication of data is a gravest form of scientific misconduct. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है? सबसे पहला प्लेजरिज्म है, वी डिस्कस व्हाट प्लेजरिज्म इज ऑल अबाउट। सेकेंड इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ आइडियाज ऑफ अदर्स, कि आपने देखा कि किसी और का आइडिया है, आपने चुरा के उस पर वर्क कर लिया। ठीक है। इम्प्रोप्राइटीज ऑफ ऑथरशिप, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑथरशिप किसी और की है, आपने अपने नाम से कर ली, आपने ड्यू क्रेडिट किसी को दिया नहीं। सिमल्टेनियस पब्लिकेशन, आपने एक साथ 3 जर्नल या 2 जर्नल में आपने पब्लिकेशन के लिए डाल दिया, आपका जो पेपर है वो भी गलत है। नेक्स्ट, आपने डुप्लीकेट पब्लिकेशन किया, मतलब आपने वही चीज़ दोबारा से छापनी चाहिए, वो भी गलत है। सलामी स्लाइसिंग एक टर्म यूज़ करते हैं, सलामी स्लाइसिंग होता है कि किसी और का थोड़ा सा वर्क लिया और थोड़ा सा अपना डाल दिया, उस हिसाब से आप अपना काम करते जा रहे हैं, वो भी गलत है। नॉन डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब आप कहीं रिसर्च वर्क करते हैं, कई बार जिस नॉर्म से या आपके जो डेटा है वो किसी और के वर्क में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो वो साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है। देन कंडक्टिंग रिसर्च विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट एंड एथिकल अप्रूवल, आप सपोज आपको लगता है कि आप बैंक को यूनिवर्स बना लेंगे या आप किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को यूनिवर्स बना लेंगे, लेकिन वहाँ पे बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना उनसे परमिशन के डेटा अगर आपने सीक्रेटली कलेक्ट किया है तो वो एक साइंटिफिक मिसकंडक्ट में आता है। देन नॉट मेंटेनिंग द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मिसकंडक्ट, अगर आपने सपोज आपने कहीं से डेटा लिया और उसने बोला कि मैं आपको डेटा तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपने नाम उनका रिवील कर दिया है, आपने वो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मेंटेन की है, अगेन इट विल बी पार्ट ऑफ योर साइंटिफिक मिसकंडक्ट। तो एक कोप करके ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे सोशल साइंस रिसर्च के एथिक्स नॉर्म्स को गवर्न करती है। ये सारे साइंटिफिक जो आपके एथिक्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस ने ले डाउन किए हैं और आपको उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ग्रेवेस्ट पनिशमेंट भी मिल सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है, कई जर्नल्स आपको बैन भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर सबमिशन ऑफ योर आर्टिकल। तो ये एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो एथिकल पब्लिकेशंस को गवर्न करती हैं? एक है इंटरनेशनल कमेटी फॉर मेडिकल जर्नल्स एंड ऑथर्स। तो ये इंटरनेशनल जो है आपकी जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल्स एडिटर्स है, ये बेसिकली मेडिकल जर्नल्स को गवर्न करती है, उनके लिए ये रूल्स बनाती है। सेकेंड आपकी है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर्स, दैट इज़ WAMI। इनका बेसिक काम है ये गोल्स आपके एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स के इनने नॉर्म्स दिए हुए हैं। इट प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म इन मेडिकल एडिटिंग। It also encourages research on the principles and practice of medical editing। और इनका बेसिक काम होता है वर्ल्ड वाइड कोऑपरेशन देना, कम्युनिकेशन अमंग एडिटर्स ऑफ पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स। इसकी मेंबरशिप फ्री है और इसके जो एडिटर्स हैं ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स के इस नॉर्म्स देते हैं। लास्ट जो आपका कोप है कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, ये 1997 में बनी थी, ये यूके में बनाई गई थी। इट प्रोवाइड्स पेड मेंबरशिप करंटली टू 7000 मेंबर्स। इसका बेसिक पर्पस होता है टू फाइंड द प्रैक्टिकल वेज टू डील विद द मिसकंडक्ट केसेस एंड टू डेवलप कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस। इट ऑल्सो जनरेट्स द फंडिंग ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। तो ये 3 एजेंसीज हैं जो आपके एथिकल मिसकंडक्ट को गवर्न करती हैं और ये नॉर्म्स देती हैं कि किस तरह से आपके पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। नाउ वी कम टू द एसेंशियल पॉइंट, दैट इज प्लेजरिज्म। So what is plagiarism basically? So it is regarded unethical because when a researcher forwards somebody else's work as his own original work, it might be regarded as kind of a fraud. तो प्लेजरिज्म को हम फ्रॉड मानते हैं क्योंकि आप किसी और का काम, किसी और का आइडिया अपने नाम से अगर आप सेल ऑफ करते हैं या लिखते हैं
तो ये एक फ्रॉड ही होता है, ये एक चोरी भी कहलाता है, तो ये क्रिमिनल पनिशेबल ऑफेंस में भी आ जाता है। जो डिक्शनरी है वो डिफाइन करती है टू यूज द वर्ड्स और आइडियाज ऑफ अदर पर्सन्स एज इफ दे वर योर ओन वर्ड्स और आइडियाज। So it is basically copying the whole portion or a part of the portion without acknowledging the original contribution. तो अगर आप किसी का आइडिया भी ले रहे हैं, किसी की थॉट भी ले रहे हैं, किसी का वर्क ले रहे हैं और उसमें उसको क्रेडिट नहीं देते हैं या उसमें उसका नॉर्म्स नहीं देते हैं, then that will be quite a scientific misconduct. Then obviously जब हम प्लेजरिज्म की और बात करते हैं, अगर आप प्लेजरिज्म करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हमने पहले बात की थी, आप उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, मतलब आप किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए एक ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, आपकी खुद की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी क्वेश्चन में आ जाती है। सो जब भी आप रिसर्च वर्क करते हैं, आप देखिए इट शुड बी करप्शन फ्री, और जो भी थॉट प्रोसेस किसी और का ले रहे हैं उसका साइटेशन ज़रूर दें, उसको एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दें। सो प्लेजरिज्म के रूल्स बनाए इसलिए गए हैं क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथर के ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है, और जो इस तरह की चोरी या फ्रॉड करने में इंटेंशन रखता है उसे वो सज़ा भी दिलाता है। पनिशमेंट कुड बी दे कैन बी पेनल्टीज बोथ मॉनेटरी एंड पीनल। तो आपकी जिस तरह ग्रेविटी ऑफ स्टोरी है, जिसे हम कहते हैं, जिस तरह का क्राइम है, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। मिनिमम ये है कि आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे, और अगर बहुत बड़ी साइंटिफिक चोरी है तो आपको जेल भी हो सकती है। सो बेसिकली अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, सो इट इज़ अ डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड ऑफ योर स्टूडेंट। कोई भी स्कॉलर अगर ऐसा काम करता है, कोई भी टीचर ऐसा कोई काम करता है, तो आप ना सिर्फ अपने आप को स्टेक पे डालते हैं, आपकी इंटेग्रिटी को स्टेक पे डालते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट को, आपके प्रोफेसर्स को, आपके पूरे एकेडमिक फ्रेटर्निटी को आप स्टेक पे डालते हैं। सो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो सिर्फ एक लाइन चुराई है या मैंने तो सिर्फ एक लाइन कॉपी की है, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि even a single instance of plagiarism will make the whole paper plagiarized. So you need to keep this in mind. ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने तो सिर्फ एक पैरा लिया है या एक लाइन ली है या मैंने 2 वर्ड्स लिए। चाहे 1 रुपए की चोरी करो, चाहे 1 करोड़ की चोरी करो, चोरी चोरी ही कहलाएगी। ओके, कॉपी कॉपी ही कहलाएगा विद इफ यू डू नॉट एक्नॉलेज। अगर आपने उस कंसर्न पर्सन का, व्यक्ति का नाम दिया है, देन इट्स फाइन। अगर हम प्लेजरिज्म, हम उसी एक्शन को कहते हैं कि जब आप किसी और के ऑथरशिप का, किसी और के आइडिया को आप कॉपी करते हो, भले वो 2 शब्द हो, 1 लाइन हो या 1 पैराग्राफ हो। तो डिग्री एंड फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म डज नॉट मैटर। कॉपिंग विल बी इक्वली पनिशेबल अगर आप ये ऐसा कोई काम करते हैं तो। Okay, so it is least importance to consider that whether the original source was for the web based and library use. तो ये भी आप ये नहीं कह सकते अरे मैंने तो इंटरनेट से ले लिया, इंटरनेट से ले लिया था तो मैं इसे सोर्स नहीं दे गई। अगर आप इंटरनेट से ले रहे हैं तो उसकी वेबसाइट जो है, उसका जो www.http प्रोटोकॉल है, आप उसको कॉपी करके रेफरेंस में डालिए। कई बार ऑथर्स के नाम भी दिए जाते हैं, उस ऑथर्स को भी नाम में डालिए। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मैंने तो वेब से लिया था, इंटरनेट से लिया था या लाइब्रेरी से लिया था और उसका बुक का कवर पेज फटा हुआ था। तो आप ये एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। इट विल ऑल अमाउंट टू प्लेजरिज्म। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन था मैम, जैसे कई बार हम खुद पब्लिश करते हैं और जब हम दोबारा अपने पेपर में उसी से कुछ मटेरियल लेते हैं तो वो भी प्लेगरिज्म दिखाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? आपका सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाएगा, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। तो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लेजरिज्म इज वर्बेटिम प्लेजरिज्म। वर्बेटिम प्लेजरिज्म में क्या होता है
वर्बेटिम प्लेजरिज्म में होता है कि जब आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करते हैं किसी का वर्क और आप उस ऑथर का नाम नहीं डालते हैं, उसे हम वर्बेटिम प्लेजरिज्म कहते हैं, करेक्ट। सेकंड होता है मोज़ेक प्लेजरिज्म और पैच राइटिंग। पैच राइटिंग या मोज़ेक प्लेजरिज्म में क्या होता है, सपोजिटली अगर आपको लगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ कि रेस्टोरेंट में एक अच्छा एम्बियंस होना चाहिए, मतलब डेकोरेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, ओके। आपने वो एक किसी का पेपर पढ़ा जिसमें ये पेपर में दिया गया था कि हाँ अगर अच्छा डेकोरेशन होता है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उस रेस्टोरेंट को विजिट करते हैं। ये एक पेपर की रिसर्च थी। सेकंड, आपको क्या आइडिया आया कि हम सिर्फ लैंडस्केप जो व्यू होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को, लैंडस्केप व्यू। तो होता तो वही है कि एक अच्छा डेकोरेशन है, तो आपने लैंडस्केप व्यू का ऊपर कर दिया, आपने इस आइडिया को लेके मर्ज कर दिया। तो दिस इज मोज़ेक प्लेजरिज्म। आपने एक का आइडिया लिया, उसका आइडिया अपने से मर्ज किया, लेकिन वो आइडिया का बेस जो था आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया। तो दिस इज नोन एज मोज़ेक प्लेजरिज्म। थर्ड इज अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म, कि आपने किसी का वर्क लिया, आपने उसको पैराफ्रेज किया, आपने अपने वर्ड्स में उसको लिखा, लेकिन अगेन आप अपने वर्ड्स में लिखते भी हैं उसको, तो भी आपको साइट करना है कि आपने ये वर्क कहाँ से लिया है। दिस इज अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। अगर आप ऐसा साइटेशन नहीं देते तो इट विल बी अनइंटेंशनल प्लेजरिज्म। स्ट्रक्चर प्लेजरिज्म। स्ट्रक्चर प्लेजरिज्म में क्या होता है, जब आप पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट और आइडिया एकदम डिफरेंट लैंग्वेज में कॉपी कर देते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था कि इंग्लिश का कोई रिसर्च पेपर है, आई थिंक समबडी हैड क्वेश्चन कि इंग्लिश का पेपर मैंने पढ़ा और उसे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ओके। सो दिस इज स्ट्रक्चर प्लेजरिज्म। है तो वही काम, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, दैट विल नॉट मेक योर वर्क ओरिजिनल, ओके। यू अगेन हैव टू साइट कि आपने ये वर्क कहाँ से लिया है, भले ही आप उसको हिंदी टू इंग्लिश करें, इंग्लिश टू मराठी करें, मराठी टू पंजाबी करें, पंजाबी टू बंगाली करें, डजंट मैटर। जो ओरिजिनल वर्क है, ओरिजिनल ऑथर का नाम आना चाहिए। सो दिस इज, अगर आप नहीं ऑथर का नाम डालते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी, मराठी टू पंजाबी ट्रांसलेट करते हैं, इट विल बी स्ट्रक्चर प्लेजरिज्म। लास्ट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। अगर आपने सपोजिटली कोई काम किया है किसी पेपर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं कि मैंने जॉब सिक्योरिटी पे काम किया है, जॉब सिक्योरिटी पे मैंने एक एंगल पे काम किया था कि जॉब सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अब सेकंड पेपर मैं जो लिख रही हूँ वो भी जॉब सिक्योरिटी पे लिख रही हूँ, उसमें मैं टाइप्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर रही हूँ, लेकिन उसमें से कुछ मटेरियल जो है मैं अपने फर्स्ट पेपर से ले रही हूँ। तो मैंने सोचा मेरा ही पेपर है, मुझे अपना नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। दिस इज नोन एज सेल्फ प्लेजरिज्म। तो आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपने कोई पेपर लिखा है पहले और आप उस पेपर से अपना काम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको आपका साइटेशन देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे, इट विल अमाउंट टू सेल्फ प्लेजरिज्म। आर वी क्लियर नाउ? जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, ओके मैम, क्लियर। मैडम, आर यू क्लियर? यस मैम। यस मैम, क्लियर। यस मैम। So you even need to mention your name when you are writing your work, okay? So last but not the least, जब हम research करते हैं, आपका the processes you know you adopt an hypothesis, उस hypothesis को approve करते हैं, disprove करते हैं, then obviously आपका जो काम है, जिस एरिया जिससे भी आप एसोसिएट होते हैं, जो भी डिसिप्लिनरी नॉर्म्स है उसको आप फॉलो करते हैं, आप अपना डेटा कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करते हैं। जस्ट इंश्योर दैट आपका जो प्लेजरिज्म अगर उसमें है तो वो आपके ही पूरे वर्क को, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को वो डैमेज करता है। सो डू नॉट गो फॉर प्लेजराइज्ड वर्क। So this was from my part. I hope your publication ethics and plagiarism concept is clear. इसके further भी कोई queries हैं तो please let me know. मैम, हाँ जी।
हाँ सर, आप बोल दीजिए फिर मैं पूछ लूंगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम जैसे साइंटिफिक मैंने कोई रिसर्च पब्लिकेशन दिया और जी किसी के दूसरे व्यक्ति के आइडिया के कॉन्ट्रेरी रहा, पर मुझको ये नहीं मालूम कि ये रिसर्च पहले पब्लिश हो चुका है, तो उसमें कैसे करेंगे मैम? ये थोड़ी सी हो जाती है जब आप जिस एरिया पे वर्क करते हैं तो आप उससे कोरिलेटेड पेपर्स तो स्टडी करते ही हैं। ओके, अब इसमें दो चीज़ें हैं, आप समझिएगा। अगर आपका एग्जैक्ट आइडिया मैच हो रहा है एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, तो आपका वर्क प्लेजरिज्म में आएगा, बिकॉज अगर आप एग्जैक्ट वर्क पे काम करें तो कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस वर्क को स्टडी किया होना चाहिए, और उस प्रीवियस वर्क पे उस ऑथर का नाम कहीं ना कहीं यू वुड हैव कम अक्रॉस द वर्क ऑफ दैट पर्सन। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मिस कर दें। सेकेंड, जैसे कि एक किसी ने वर्क किया है एम्प्लॉय एटीट्यूड पे तंजानिया में, बैंक पे, तो एम्प्लॉय एटीट्यूड पे उसने वर्क किया है तंजानिया पे, मैंने वो रिसर्च पेपर पढ़ा है, मैंने वही बेस लेके एम्प्लॉय एटीट्यूड इंडिया पे वर्क किया है इंडियन बैंक्स पे, तो मैं उस पेपर का मेंशन तो करूँगी। तो टू अवॉइड प्लेजरिज्म यू नीड टू बी केयरफुल कि आपका क्या बोलते हैं जो वर्क है या आइडिया है, जब हम वर्ड रिसर्च करते हैं ना, इसलिए हम सर्च नहीं बोलते हैं, हम रिसर्च इसलिए बोलते हैं कि आप ऑलरेडी प्रीवियस वर्क पढ़ते हैं, और जब आप प्रीवियस वर्क पढ़ते हैं उसमें आपका एक नया एंगल डालते हैं, तो ऑलरेडी यू हैव कम अक्रॉस वॉट एवर हैज़ बीन पब्लिश्ड बिफोर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता आज के ज़माने में कि आपका आइडिया इतना ओरिजिनल है। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपका आइडिया ओरिजिनल है, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं जाएगा, वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएगा कि आप पहली बार वर्क करते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो वर्क करेंगे तो आपका अगेन उससे मैच नहीं होगा, क्योंकि आपका यूनिवर्स अलग होगा, आपका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। एम आई क्लियर? यस मैम, एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, यू वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम आपने बोला था कि 10% बिलो 10% प्लेजरिज्म होने से चल जाता है, एम आई राइट मैम? ये यूजीसी का नॉर्म है, मैंने नहीं बोला। हाँ, वही यूजीसी का नॉर्म है, आपने बताया था। जी, तो जब जी। हम सब साइटेशंस मेंशन कर रहे हैं और सब कुछ हम क्लियर रख रहे हैं, फिर प्लेजरिज्म की बात अगर मेंशन करते हैं फिर भी कहीं प्लेजरिज्म का प्रॉब्लम आता है क्या? जैसे मैंने जितना भी साइटेशन जहाँ से कुछ भी उठाया है उसका सबका साइटेशन दिया है, मेंशन किया है, तो भी वो प्लेजरिज्म में कुछ ना कुछ परसेंटेज दिखाता है क्या? दिखाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अपनी थीसिस का काम किया था, तो पेपर्स का तो जो जितना मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह था या मेरा जो इंट्रोडक्शन था टू कंक्लूजन वाज फाइन, उसमें सिर्फ 3% था। मैंने क्या, मेरा जो यूनिवर्स था वो बैंक का था, तो बैंकिंग हिस्ट्री मैंने इंटरनेट से ली थी। अब बैंक जो यूनिवर्स था वो बहुत लोगों ने लिया होगा, ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत, इवन इफ यू साइट दैट इज फाइन, तो बैंक का जो कंटेंट है, आप कितने भी वर्ड्स चेंज कर लो, वो मतलब ये समझ लो 100 लोगों ने ऑलरेडी वर्ड्स चेंज कर करके लिखा था, ओके, तो वो प्लेजरिज्म वाला हाईलाइट कर देता है। अब इसमें सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, जब मैंने आपको बोला था 10% ऑफ योर पेपर शुड बी लेस देन 10%, यूजीसी ने ये भी नॉर्म्स बनाए हैं कि कौन से पार्ट में कितना प्लेजरिज्म होना चाहिए। जैसे कि आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, आपका जो डेटा एनालिसिस है, उसमें वो 100% मान के चलते हैं कि आपका ओरिजिनल वर्क होगा। उसमें अगर प्लेजरिज्म पकड़ा गया तो आपका प्लेजरिज्म बहुत बड़ा माना जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया ये बैंकिंग हिस्ट्री वगैरह है, इसमें अगर प्लेजरिज्म आता है तो वो इग्नोरेबल होगा। तो यूजीसी ने इसके भी रूल्स दिए गए हैं कि कौन से पार्ट में कितना प्लेजरिज्म अलाउड है। मैडम रिव्यू में तो हम जबकि दूसरों का ही वर्क बताते हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा प्लीज और क्लियर कर पाएंगे? रिव्यू जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, इट्स अ स्टाइल, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे। जब हम रिव्यू करते हैं तो हम एक पैराफ्रेजिंग करते हैं, उस पैराफ्रेजिंग में हम एक समरी लिखते हैं। वो समरी ओरिजिनल राइटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन हम फिर उस ऑथर का नाम लिखते हैं, इसलिए आपका उसमें अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ओके, ठीक है। और एक कहाँ बोले मैडम? एक तो रिव्यू बोले और एक कौन सा पार्ट में बोले? आपका जैसे आपका इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डेटा एनालिसिस बहुत प्योर होना चाहिए।
ओके, वो प्योर है क्योंकि वो प्योर ही होगा, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल वर्क होगा। ओरिजिनल वर्क होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है जिसमें आप यूनिवर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पार्ट में थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म आपका निकल सकता है, दैट इज ओके। और उसमें साइटेशंस प्रॉपर दीजिएगा, तो इट इज फिर वो मतलब आप पे केस नहीं बनेगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। एनी अदर? जी मैम। जी बताइए मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये आप बोले पनिशमेंट मिलेगा, तो किस टाइप का पनिशमेंट मिलेगा? ये संज्ञेय रहेगा कि असंज्ञेय रहेगा? देखो, मैंने मेंशन किया था, आपने सुना होगा, मिनिमम पनिशमेंट होता है ब्लैक लिस्टिंग, ठीक है। आपको जर्नल्स ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ क्राइम, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। मैंने आपको पहले बोला था कि 1 रुपए की चोरी या 1 करोड़ की चोरी चोरी होती है, ओके। पीनल जो लॉज हैं इसमें वर्क आ गए हैं आजकल। अगर आप प्लेजराइज करते हैं और अगर आपने वाकई में किसी का ओरिजिनल मेहनत किसी की चुराई है, जिससे उसकी रेपुटेशन भी स्टेक पे आ गई, उसका करियर भी स्टेक पे आ गया, आपने डैमेज किया है, तो कोर्ट उस हिसाब से तय करके आपको जेल भी भेज सकती है और मॉनेटरी पनिशमेंट भी आपको दे सकती है। ये क्षेत्र कहाँ होगा मैडम? न्यायिक अधिकार किसको होगा? कौन से जिस जिले में वो किया गया? आपका जिस जहाँ पे आप एफआईआर करेंगे, ये अगर संज्ञेय अपराध हो तो आप जहाँ पे रहते हैं, जनरली देखिए, मेरे को लॉ का बहुत आइडिया नहीं है, पर जनरली मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप कहाँ के हैं अभी? दुर्ग के हैं? दुर्ग के, ठीक है ना। तो आप दुर्ग के ओरिजिनल वासी हैं, आपने एक पेपर लिखा, आपने जर्नल में डाला, ओके। तो इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट का ऑफिस बेंगलोर में होता है, आप वहीं पे केस फाइल करते हैं कि आपका कॉपीराइट है या आपके जो चीज़ें हैं, आप फाइल रिपोर्ट मेंशन करते हैं, कंप्लेन मेंशन करते हैं, जनरल प्रोसेस ये होता है। और फिर आप एक पिटिशन फाइल करते हैं कि आपका जो वर्क है आपका किसी पर्सन ने चुराया हुआ है, फिर उस वे से ये केस डील किया जाता है। बाकी लीगल प्रोसेस मुझे बहुत क्लियर नहीं है, मैं फाइंड आउट करके आपको बता दूंगी। मैं ना इसलिए मैं पूछा मैडम, क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ, इसलिए पूछा आपको कि वो कैसे रहेगा। जी नहीं, पुलिस में तो फिर बेटर है क्राइम ही मत कीजिए, उसमें रास्ते में जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, करना नहीं है, जो करेगा उसको तो कुछ उसके लिए करना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपको इसका प्रोसेस होता है, आपको वो जो जर्नल है सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई में किसी ने आपका जो पेपर है वो कॉपी किया है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ही अंतर्गत आता है। आप कॉपीराइट एक्ट में मेंशन करते हैं कि आपका ये वर्क चुराया गया है। जी, ये असली में परिवाद होगा मैडम? इसमें क्या अपन कोर्ट में डायरेक्ट परिवाद पेश करेंगे कोर्ट में कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब वहां से फिर नोटिस जारी होता है? ये क्या है? नहीं, कॉपीराइट के अंदर एक्ट है, ये बैंगलोर में इसका ऑफिस है। आपको पहले वहाँ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपका केस आगे बढ़ेगा। जी, थैंक यू मैम। ओके जी। आप पुलिस में पीएचडी कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी प्लीज बोलिए। हेलो, हाँ जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन मेरा है। जी एक क्वेश्चन है मैम कि जैसे हमने पूरा वर्क किया, रिसर्च किया, सारा चीज़ कर लिया, बट हमें पता नहीं था कि वो किसी ने किया था, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, प्रवीण जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने यही बोला था, हम वर्ड जो हम करते हैं वो रिसर्च ही करते हैं। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, आप उसके प्रीवियस वर्क को भी स्टडी करते हैं। तो ये आप चाहे वेबसाइट ले लें, चाहे लाइब्रेरी बुक्स ले लें, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेंशन होती हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है, हो सकता है कि आप जो पेपर पे काम कर रहे हैं उस टाइप का पेपर कहीं और पब्लिश हुआ है, वो रिसर्च पेपर आपके पास नहीं लगा है, लेकिन आप जिन पेपर्स को स्टडी करके अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस रिसर्च पेपर को स्टडी करेंगे, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि आपने आपका वर्क कहाँ से लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया के सारे रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने जिस सोर्स से अपना काम किया, आप उस सोर्स को मेंशन करिए, देन यू आर सेफ। ठीक है? ओके, थैंक यू। हाँ, आपका सोर्स मेंशन होना चाहिए। हाँ जी पूछिए। मैम एक क्वेश्चन और कि यदि हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसका क्वेश्चनियर हम लोग दूसरे का ले सकते हैं या नेट पे जैसे उपलब्ध है, या खुद ही बनाना पड़ेगा?
देखो, कई जैसे एटीट्यूड सर्वेज होते हैं, एप्टीट्यूड सर्वेज होते हैं, ये कुछ क्वेश्चनर्स आपके स्ट्रक्चर्ड रहते हैं जो आपके नेट पे रहते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल हैं। लेकिन आपका जो वर्क है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो क्वेश्चनर फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे तो आप मॉडिफाई करोगे ही अपने हिसाब से, करेक्ट है? तो जैसे अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें, एक मायर्स ब्रिग अप्रोच है, तो उनका एक जो है लिकर्ट स्केल है जिस पे हम क्वेश्चनर बनाते हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, ये चीज़ों को आप ले सकते हो, देयर इज नो हार्म। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, आपको वो देखना है, उसमें तो आप अपना ओरिजिनली मॉडिफाई करोगे ना। और किसी और का क्वेश्चनर क्यों आप लोगे? वो जो रिसर्च कर रहा है वो अपने ऑब्जेक्टिव से करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव तो ना उससे फुलफिल होगा। तो क्वेश्चनर हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के हिसाब से बनाओ, किसी और का कॉपी करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस डिवाइस कर लो, आपका ओरिजिनल ही बनेगा। ठीक है मैम? एक डाउट था और मैम, एक्चुअली जब हम अपना पेपर देते हैं किसी जर्नल को, तो वो लोग भी तो चेक करते हैं ना मैम प्लेगरिज्म, कि ऐसे ही पब्लिश कर देते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं वो लोग। तो अगर नहीं होता है तो ही पब्लिश होता है, और एल्स वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, या आपको अगर आपका पेपर अच्छा है रिव्यू और प्लेजरिज्म की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है तो वो आपको रीसेंड करते हैं, रिमार्क डाल के कि आपको इस पे रीवर्क करना है। जी मैम, जी ठीक है मैडम, वही पूछना था, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाता है, बट हमें भी अपने ओर से ध्यान रखना है कि प्रॉपर साइटेशन टाइम मैंने जहाँ जरूरी है कर देना है, भाई जरूरी नहीं देना ही देना है। आप एक वर्ड भी किसी और का ले रहे हो, साइट कर दो, सबसे सेफ साइट वही है। जी जी जी, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई थिंक वी आर डन। हाँ जी, बताइए। मैम वन लास्ट क्वेश्चन मैम ऑन अ लाइटर नोट। हाँ जी, प्लीज गो अहेड, नो इश्यूज। मैम अगर किसी ने प्लेजराइज किया है कुछ और हमने उसको साइट कर दिया, ऑलरेडी प्लेजराइज का वर्क, और वो हमने साइट कर दिया, तो वो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा है कि आपको आपका सोर्स देना पड़ेगा। अगर आपने अपना सोर्स दिया है, यू आर सेफ। आपने अपना सोर्स नहीं दिया है, देन यू आर नॉट सेफ। आपको नहीं पता ना कौन सा वर्क प्लेजराइज है, कौन सा नहीं है। यस मैम। आप सिर्फ सोर्स दीजिए अपना, योर सोर्स शुड बी क्लियर। यस मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, यशवंत जी कुछ पूछ रहे थे? नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। Any other query? I think all query you have very solved all your queries. Really very nice and knowledgeable sharing session. So officially on the behalf of Bharati University, I extend a really hearty vote of thanks to our special guest, Dr. Suneet Walia, who spared time from her busy schedule to share her knowledge. And today we had an opportunity to hear your thoughts and knowledge, and definitely will surely assure you that our research scholars, they can get benefited from your knowledge in your future research. Thank you so much. So from these words, I am just ending the session, and I hope really I invite you again. Sure. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ji. Thank you so much. Thank you, ma'am. Nice lecture. Okay, thank you. I hope it. We really enjoyed and collected so much of information, ma'am. Thank you so much. Okay. Yeah, You're welcome. actually few candidates asking from me कि can I get these PPTs from ma'am? So if possible, just share to me. WhatsApp me. I'll mail you. I'll mail you. Okay, Okay, ji. Thank you so much. Bye bye. Thank you.